शेयर करने हो ना? कैसे? शेयर करने के लिए बोला तुमने। दिखाओ थोड़ा क्या किया हो प्रैक्टिस वगैरह। दिख रहा है, दिख रहा है। ब्राउजर पे ले आओ, माई सर्वर पे। एक ये था और एक ये वाला। तो तुम्हारा इनपुट का वो हो गया, उसे करना। ठीक है, ठीक है। तो मैं बंद कर सकता हूँ अभी। जस्ट मैं आज सीएसएस पे कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है? वो चलो, आई एम प्रेजेंटिंग नाउ। So first create a folder. Class 2. Don't care. First is first, index.html. One HTML file I need for now, and with that I will need another file like readme or content.m. One readme file will be there. So topics we will be covering today. तो आज का हमारा टॉपिक है इतना सारा कुछ, मतलब दिखने में बहुत ज्यादा है बट थोड़ा कम ही। इंट्रोडक्शन क्या होता है, सीएसएस व्हाट इज इट, सिंटैक्स वगैरह वगैरह क्या होता है, उस हिसाब से। तो फर्स्ट लेट क्रिएट वन boilerplate is done, and I will say introduction to CSS 3. Done. In the body also I will set as introduction to CSS 3, and then I might need some text. By the way, Lorem gives us some random words, okay, maybe 30-40 words, whatever we need. We can click like this and then enter. It gives us some random words. Let me close it. And now if I go live, see, we have this plain simple something. Okay, so now if we know CSS को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, we can write it in 3 ways. Okay,
So CSS can be written in three ways. बताओ अगर पता हो तो क्या क्या है? पता है? नहीं सर। ऐसे लिखते हैं. One is inline CSS. ठीक है? Next one is link external file. इस तरीके से हुआ. And the last one that we can say using style tag. Using style tag. लिखने के लिए लिख रहा हूँ. Otherwise ठीक है. तो तीन तरीके से होता है एक्चुअली. अच्छा, नीचे से ऊपर तक जाएगी यूजिंग स्टाइल टैग. वो क्या होता है? वी हैव दिस हेड हियर. तो हेड के अंदर मैं एक स्टाइल टैग दूंगा. इन बिटवीन दिस आई कैन राइट सीएसएस प्रॉपर्टीज. और क्या तरीका होता है? आई कैन सेपरेटली गिव अ स्टाइल हियर. इसमें भी ऐसे भी मैं स्टाइल दे सकता हूँ. ठीक है. हियर आल्सो आई कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस. कुछ भी हो. सपोज आई वांट बैकग्राउंड कलर टू बी रेड. ओके. सीएसएस का प्रॉपर्टी ऐसे भी अप्लाई हो सकता है. सपोज आई वांट the size of the font of HTML to be a much more bigger font. So I can say select H1, then font size something something, maybe 40 pixels, much more bigger. Reload हो जाए कुछ नहीं पड़ा. 40 pixels. Laptop. ठीक है. तो जो भी हो, तो we have this facilities here to give style uh, by using style tag in HTML head. Also, we can give styles through the inline CSS properties. क्या speak को निकालना. क्या होगा? ठीक है. But it is always better to keep our stylings in a separate file. For now, मैंने तो ये दो तरीका दिखा दिया. अभी जो तीसरा तरीका है, that is using a separate file. So we have linked some external file. I will create a file here that will be style.css. Okay. And now I will link that here. So link CSS style. तो इसका क्या है? स्टाइल शीट है एक्चुअली रिलेटेड टू दैट. एंड href is to the separate file. अभी these two files are co-related with each other. I can write CSS directly here and that will reflect to this HTML. That you should know. कुछ YouTube वगैरह तो देखे ही होगा, वहाँ पे तुमको पता होगा. चलो अभी के लिए एलाइज वगैरह को हटा देता हूँ. ये वाला भी हमको नहीं चाहिए, हटाओ. ये वाला भी नहीं चाहिए, हटाओ. तो 3 ways हो गए अपने पास. अच्छा, to move forward we need to know that we have different जो टैग्स हैं ये कैसे होते हैं. मतलब ये क्या ब्लॉक लेवल होते हैं, क्या इनलाइन होते हैं, ये सब हमको बताना चाहिए. So what does it mean by block or inline element? See, these are inline block inline. So if I hover this, by the way, this is a developer tool. So if you inspect it here, शैडो को क्लिक करो. अभी अगर इसको बचा क्या देख सकते हो कि पूरा का पूरा विड्थ ले लिया. मेरा विंडो का फुल विड्थ इसने लेके रखा है. So what kind of element is it? It is a block level ब्लॉक. element. It is taking a entire block. ठीक है. और अगर हम कुछ स्पैन वगैरह कुछ दे सकते हैं, इमेज वगैरह कुछ देंगे, तो that will consider as an inline element. For example, स्पैन अगर मैंने दिया हेलो, उसके बाद
ये तो मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, so it will reflect here. Now if I take this arrow and just hover it, इसका कितना width है? The width is limited to the content only. Content जितना होगा उतना ही इसका width आएगा, ठीक है? तो इसको मैं if I click it here, so no style, nothing is there. Simple. But if I click in the H1, you can see that display block. It's a block level element. Similarly, if I click on the paragraph tag, P tag here, it will also display like display block level element. Okay. तो ऐसे हम अगर दिमाग में ना भी रहे तो इंस्पेक्टर पे देख के समझ सकते हैं, ठीक है? सिमिलर थिंग इज फॉर द इमेज आल्सो. इमेज में भी ऐसे ही होता है. ও দরজাগুলো বন্ধ করো তো. Okay. First part almost complete. Type of ये वो complete हो गया. Now we are moving into this. First width and height. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है. अच्छा, तो हम लोग के पास यूनिट मेजर करने के लिए कौन कौन से है? लाइक पिक्सेल्स वगैरह है, और क्या है? परसेंटेज है ना, और रैम है, ईएम है, दिस आर द थिंग्स, है ना? बट इफ आई से सपोज आई एम हैविंग दिस एच, इस h1 को मैं दूंगा समथिंग. अच्छा, इससे पहले देख लीजिए सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अदरवाइज इसका काम. सिलेक्टर्स बताओ, सिलेक्टर्स क्या क्या होते हैं? पीडीएफ देखा होगा तो one is tag selector, ठीक है? Next one is class selector. Next one is what? एक सेकंड रुको. আমার দরজা তো বন্ধ করে কি যায় আসছে আমার বিরক্ত লাগে. আমার বন্ধ করে আসবো না पढ़ाओ. अच्छा, क्लास सिलेक्टर हो गया, और क्या है अपने पास? आईडी सिलेक्टर, ठीक है? एंड लास्ट वन इज ग्रुप सिलेक्टर. ओके. टैग मतलब क्या? हमको अगर किसी भी टैग को यहाँ पे स्टाइल करना है, वी कैन सिलेक्ट इट बाय द नेम ओनली, ठीक है? आईडी मतलब इफ आई नीड टू स्पेसिफिकली सिलेक्ट दिस वन, say this is my span id, so this will be selected. Class मतलब if I have to select multiple, और अगर मुझको मल्टीपल टैग्स में सेम टाइप ऑफ स्टाइलिंग करना है, इन दैट केस आई विल मेक देम यूजिंग क्लास. सो क्लास में हम ये इसको सपोज कंटेनर देते हैं, कंटेनर एक हो गया, each one कंटेनर में आ गया. मे बी उसको h2 भी देना होगा, h2 समथिंग, और इसको भी मैंने क्लास दे दिया. Okay. So in the UI level, nothing has changed, but we have the classes and containers. ये आप भी देख सकते हो. We have these classes, etc. ये सब यहाँ पे अटैच हो चुका. Now what? अभी हम इसको पकड़ पकड़ के स्टाइल करेंगे. सिंपल. पहले P को कर लेते हैं. P for the tag selector. P को हम बोलेंगे font. फॉन्ट में जो जो भी होता है यहाँ पे दिया हुआ है, तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं. फॉन्ट वेट थोड़ा सा हेवी वेट हो जाएगा, थिक हो जाएगा. और क्या होता है? मे बी फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक्स हुआ, नॉर्मल हुआ, ऑब्लिक हुआ, जो भी है. अभी
कुछ दिया मैंने, पता नहीं क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो दिस विल बी द इफेक्ट। उसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। और क्या है, फॉन्ट साइज 10 पिक्सेल्स, तो कुछ छोटा मोटा जो भी हुआ है यहाँ पे हमको दिख रहा है। 10 नहीं तो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सेल्स, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। So, ठीक है, so that can be applied on fonts, any kind of font we can apply here। और क्या क्या अप्लाई हो सकता है, सपोज आई कैन गिव लाइन स्पेसिंग और लाइन हाइट 20 पिक्सल, तो लाइन के बीच में से ज्यादा था, मैंने कम कर दिया ऊपर से, मे बी आई एम गिविंग 30 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा ये गैप में आ गया। आई कैन गिव कलर प्रॉपर्टीज, so color maybe orange or green or something, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कुछ दिया मैंने, लाइन के बीच में मैंने स्पेस को बड़ा कर दिया। ठीक है, लाइन लाइन हाइट और लाइन स्पेसिंग जो दिया थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी मुझको अगर लेटर्स के बीच में करना है और वर्ड्स के बीच में करना है, दैट आई कैन डू यूजिंग लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कितना चाहिए, मे बी आई नीड 5 पिक्सल, हर एक लेटर के बीच में 5 पिक्सल का गैप होगा। इफ आई वांट फॉन्ट अलाइन और अलाइन आइटम सेंटर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो पैटर्न से देना। ठीक है, दैट इज इट। तो मेजरली यही सब यूज होता है फॉर फॉन्ट्स। और व्हाट आई कैन यूज एक्सटर्नल फॉन्ट्स लाइक गूगल फॉन्ट का कुछ हो गया, या फॉन्ट ऑसम का कुछ हो गया, दैट वी कैन यूज इट। कौन आया, राजवीर, हेलो। हेलो। हाँ राजवीर, कहाँ से हो आप? मैं एक्चुअली मैं ओरिजिनली बनारस से हूँ, बट आई एम राइट नाउ स्टेइंग इन कोलकाता। ओके, तो तुमको पता है ना टाइमिंग वगैरह? हाँ हाँ हाँ, सब। कल से थोड़ा टाइम में आ जाओ, ठीक है। अभी हम ओके। सीएसएस पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल का हाँ। पार्ट ऑलमोस्ट डन है, कोई हम्म। नहीं, चलते चलते सीख जाते हैं। ओके। तो ये अपना हो गया फॉन्ट के, मतलब मेजॉरिटी फॉन्ट के ऊपर जो जो है, दैट इज डन। Similarly, we can do something for the H1s also. H1, H2 both are similar classes, so I will only style one element that will be applied both of them. So I can say dot class, क्या क्या अप्लाई होगा, मे बी आई वांट फॉन्ट फैमिली टू बी डिफरेंट, फॉन्ट फैमिली चेंज्ड, साइज थोड़ा सा बड़ा नहीं, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, डन। फॉन्ट वेट थोड़ा सा ये कम करता हूँ, फॉन्ट वेट पैराग्राफ का कम होता है, बट हेडिंग्स का वेट ज्यादा। लेटर के बीच में स्पेस करने के लिए वी हैव दिस डेटा स्पेसिंग, आई नीड व्हाट 5 पिक्सेल्स, 15 हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, चलो 5 ही ठीक। अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है, दो घंटे रहे तो काम करोगे। एंड फॉर द कलर्स we have some more, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये मेजरली हम लोगों का फॉन्ट के ऊपर हो गया। और नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव स्पैन, सो दैट इज ऑफ आईडी। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज हैशटैग।
Nothing much. I will just increase the size of. ठीक है, तो इसमें हम लोग को मोटा मोटा फॉन्ट के ऊपर जो भी ग्रिप करना चाहिए, मेजरली फॉन्ट फैमिली हो गया, वेट हो गया, स्टाइल हो गया, लेटेस्ट स्पेसिंग, लाइन हाइट, ये सब जो हुआ, सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जितना लिखना था लिख लिया। Yes, sir. हो गया पूरा लिखना? अच्छा अच्छा, लास्ट का क्या पार्ट है? लास्ट इज द ग्रुप स्टाइल, ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर मतलब अगर हमको suppose I have two things, yeah, but एक ही class है for now, but if I want to give styles, say dot container, comma, hashtag, and if I give this display, तो ग्रुप सिलेक्टर में क्या होता है? ग्रुप सिलेक्टर में एक साथ मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल आईडीज को तुम कॉमा कॉमा देकर लिख सकते हो, एंड देन यू कैन गिव अ सिंगल स्टाइल टू ऑल ऑफ देम, जो कि सबके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, आई एम गिविंग डिस्प्ले नाम, देखना था कि वो चला जाता है या नहीं। For now, my container is what? My container is the headings. These two are the headings, and the scan ID is giving to this hello. ठीक है, तो उनका अगर मैं डिस्प्ले नाम बोलूँगा तो तीनों का उड़ जाएगा। ठीक है, that will be not visible in our DOM. That is by display. So these are the type of selectors we have in CSS. That is all in CSS. इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, we will move to the this part. What we have? Pixel, percentage, rem, em. Majorly these are the ones that are most in use. But क्या है ये? These are the units for the CSS things. ठीक है, तो अगर देखो पिक्सल मेरे पास स्टैटिक है, but for percentage and rem these are relative to the parent. So these are relative units, I can say, to parent. अगर मैं बोलना चाहूँ that is percentage, सिंबल ही रहता है। ठीक है, suppose I have a box, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, so dot box is a div with a class box, nothing inside it, but I can give a single character just to identify here. अभी के लिए ऊपर का पूरा पोर्शन मैं कमेंट कर दिया इतना तक। ठीक है, so this is my box actually, उसमें अभी के लिए y रखा हुआ है। I can say dot box, अभी मैंने अगर इसको दिया height of 20 pixels and width of 20 pixels, ठीक है, and I'm giving some background black, ठीक है, आ गया ये बॉक्स मेरे पास। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये बॉक्स विजिबल है, अच्छा है, बट if I change this to this height of 10% and width of maybe 10%, किसका हाइट फिट दिया? 10%, 10% बोल सकते हो? बताओ बताओ। अभी क्या मैंने बोला? I said that these are relative to the parent. तो the parent of this box, this is the box, इसका ये div है, तो इसका parent कौन है? इसके बाहर इसके अंदर wrapped है, this is the immediate parent, that is a body. So it is taking or adjusting its height and width with the body. तो body के हिसाब से 10%, 1% जो भी लेना था वो उसने ले लिया है। ठीक है, perfect square. Now we can move things here and there. इसके अंदर मैं अभी for the box model concept
I can give few things like border, 50 pixel, margin, 10 pixel, 50 pixel को नहीं देता, 40 pixel, something solid, black, like this. Margin left से right से हर तरफ से margin आ गया. If I give 50, it will take margin from the outer layer. ठीक है. So border हो गया, margin हो गया, padding for the inner part अंदर check कर. Maybe 10 pixel would be enough. So इसको अंदर थोड़ा सा space ज़्यादा मिल गया. Okay, let me grab my graphic code. ठीक चाहिए मुझे. अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं? बॉक्स मॉडल. बॉक्स मॉडल होता क्या है पहले वो जान लेते हैं. देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स इन CSS. ठीक है. वन इज कंटेनर बॉक्स, सॉरी कंटेंट बॉक्स, content box, another one is border box. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है? इन द कंटेंट बॉक्स द कंटेंट इनसाइड इज फिक्स्ड. तो इसका जो विड्थ है दैट विल बी, और इसका जो हाइट है दैट विल बी फिक्स्ड. सपोज आई एम हैविंग ए हियर अ कंटेंट. ठीक है. इसका हाइट एंड विड्थ फिक्स है. नाउ इफ आई गिव a margin, a padding, everything will go outwards. So बाहर निकलेगा. This is my border. बाहर आया. अगर मैंने मार्जिन दिया तो उसको और बाहर निकलेगा. ठीक है. दैट इज अ कंटेंट बॉक्स और कंटेनर बॉक्स. बॉर्डर बॉक्स में क्या हुआ? इफ आई गिव अ हाइट ऑफ मे बी 50 पिक्सल और विड्थ ऑफ मे बी 50 पिक्सल ऑल्सो, तो इसका जो बॉर्डर बना उस हिसाब से ये सेट हो गया. नाउ अंदर का जो पार्ट है दैट विल नॉट शो. So maybe this is 50, this is 2, this is also 20. So if I sum up these things, 50 plus 2 plus 20, total कितना आएगा? 72. ठीक है. This will be total. But इसके अंदर मुझे बस अगर ये 50 मुझको मिला है, that will do what? It will only considered inward. तो पैडिंग वगैरह जो भी आएगा अंदर की तरफ आएगा, बॉर्डर वगैरह जो भी छपेगा वो अंदर के दीवार की तरफ छपेगा. तो ये टोटल आएगा, that will be always 50. That is why when we write CSS at the very top, we select this star, which is a universal selector, and we say box sizing border box. Box sizing border box. ठीक है. तो अभी करूँगा भी है. So like ये कंटेंट बॉक्स का क्या काम होता है? कंटेंट बॉक्स में क्या होता है? देखो बॉर्डर बॉक्स कंटेंट बॉक्स दोनों सेम है. लेफ्ट तो चीज ही रहेगा. तो यू कैन गिव हाइट, विड्थ एंड पैडिंग एक्सेट्रा. बट उसके लिए टोटल होगा तो सम अप होकर बढ़ जाएगा कंटेंट बॉक्स, बिकॉज यू आर फिक्सिंग द कंटेंट. तुम्हें बॉक्स को फिक्स नहीं करना है. सपोज समझ लो एक क्या समझोगे, मतलब केक का डब्बा है. ठीक है. तो तुम अपने कंटेंट को फिक्स कर दिए, तो उसी से अगर रैप वगैरह अगर लगाओगे
तो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। तो केक जितना बड़ा होगा तुम्हारा बॉक्स भी उतना बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। बट इफ आई एम फिक्सिंग द बॉक्स इटसेल्फ, तो मुझको हर वक्त केक उस बॉक्स के हिसाब से ही फिट करना है। So I have to make smaller cakes if necessary. Otherwise उसको क्या मिलेगा, मेरा बॉक्स का साइज जरूरत के हिसाब से बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो माई विंडो माई स्क्रीन इज फिक्स्ड, तो मुझको अपना बॉर्डर को लिमिट करना होगा, कंटेंट को नहीं, ठीक है। ज्यादा कंटेंट आएगा तो बॉर्डर कहाँ कहाँ पे जाएगा, मेरा स्क्रीन का तो रेशियो फिक्स्ड है ना। Right, right. Okay. तो चलो अभी इसको थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो अभी मैं कुछ चीज लिखने वाला हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर विच विल सिलेक्ट ऑल। आई विल से मार्जिन, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे मार्जिन पैडिंग लेके बैठा हुआ। सो दीज आर द डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग दैट एवरी एलिमेंट हैव। मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग देखो दो है, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज चूज बॉर्डर बॉक्स, लिखना होगा। अभी मैं अगर इसको सेव करूंगा तो जो डिफॉल्ट वाला जो ऊपर नीचे का स्पेस है हट जाएगा। सेविंग इट, ठीक है, पूरा बॉर्डर के साथ एकदम सट जाएगा, ठीक है, एकदम फिक्स्ड हो गया। नेक्स्ट क्या है, I need the parent. Who is the top level parent here? First is the HTML. उसके बाद अपना body, ठीक है। तो I will giving these two tags 100% height and 100% width of my window. So HTML and body, these are two tags. So I'm giving height 100% and width 100%, ठीक है। Position you can give relative also, position relative, but it's a different part, different story. सब बाद में आएगा। Easy background, something darkish gray, थोड़ा सा आपको में कम लग रहा है, ठीक है। तो जो भी कलर चाहिए मिल जाएगा तुमको, जो भी है। सो दिस इज व्हाट माय बैकग्राउंड, मतलब मेरा प्रीसेट है। मैं कुछ भी प्रोजेक्ट करूँ उससे पहले ऊपर का ये लाइंस लिखना जरूरी है। सो ऑल माय डिफॉल्ट स्टाइल्स आर रिमूव एंड माय हाइट एंड width of the body is set to 100%, तो वो उसको अपना फुल कैपेसिटी मिल गया, फुल हाइट एंड विड्थ सब कुछ, ठीक है। अच्छा नाउ इसको भी थोड़ा सा हम ठीक ठाक करेंगे, थोड़ा सा सुंदर हटा दिया। सो as per the industry what I will give, I will say dot container, बहुत जगह पे डोमेन भी होगा, उसके अंदर मैं लूंगा एक1 that will say introduction to CSS as it is। तो हम लोग कुछ दिख नहीं रहा, for that what I will do, I will say universally जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है सबका कलर कर दो एक्वा ब्लू, ठीक है, ब्राइट वाइट। और क्या है मेरे पास, एंड आई वांट एवरीथिंग टू बी सेंटर्ड अलाइन, सो आई विल से डॉट कंटेनर dir। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस div को टारगेट किया। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी आइटम्स है, मे बी h1 इज देयर, मे बी a p is there of model 20, जो भी है, ठीक है। So whatever I am targeting here, I want to make it center। डॉट कंटेनर पूरा ले लिया ना, spelling is correct, just copy it and paste it with 90%, 90% of parent, okay।
मार्जिन कंटेनर का मार्जिन चाहिए मुझे, चाहे वैसे 20 पिक्सल ऊपर से 20 पिक्सल नीचे से दिया गया। अभी देखिए क्या हुआ कॉर्ड पर, फिर मार्जिन 20 पिक्सल, मार्जिन तो चारों तरफ से लगता है, चारों तरफ से लगेगा तो ऊपर से थोड़ा सा कट के आ गया, ठीक है। सो देयर इज अ स्क्रोल, एक्चुअली स्क्रोल होना नहीं चाहिए, बट इफ आई से मार्जिन to something, a container who have a width of 100% or 90% कुछ भी है, तो वो स्क्रीन के ऊपर का भी पार्ट ले लेगा, दैट इज फाइन। तो इसको फिक्स करने का तरीका है दैट आई गिव द पेरेंट पोजीशन related, if I now reload this, will it be still there? Yes, it is still there. Inherit, maybe. Yeah. So by giving the parent position absolute, you can treat this image। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम लोगों का जो डॉम है, हमारे पास डॉम का स्ट्रक्चर है, दैट कैन डिसरेक्ट, थोड़ा सा फट जाता है इधर उधर अगर हम मार्जिन पैडिंग सब देखते तो। सो यू कैन मेक द बॉडी पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि एकदम टॉप लेवल एलिमेंट है, वो सबसे ऊपर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा उस पर, ठीक है। हो गया हम लोगों का ये पार्ट। और क्या हम दे सकते हैं, सपोज आई कैन गिव सम बैकग्राउंड, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है अपना, तो दिस इज द कंटेंट, ठीक है। अच्छा, पीछे के साइड थोड़ा ज्यादा है, सामने की साइड थोड़ा कम है, क्या करें इसके लिए, मार्जिन ऑटो नहीं हुआ, अच्छी बात है। जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं पहले, सेंटर तो कैसे करें, मुझको इसको बराबर करना है, साइड वाइज थोड़ा सा निकल गया है, दैट आई नीड टू एडजस्ट, तो राइट से आ रहा है, बाई तरफ लगा हुआ, आई विल टेक दिस आल्सो which is 80%, let's google it, nothing else, see this is all about file container middle in CSS, ऐसा कुछ लिख देते हैं। अच्छा, for the knowledge there is one thing that you always refer to, that is MDN docs। MDN में हमेशा होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी जानना हो या समझो, expand it a little bit। We have box models, etc., introduction, margin, collapsing, सब कुछ है। ये अलग चीज है। आई दिया होगा, मार्जिन वगैरह रिमूव कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट मैसेज, फ्लेक्स अभी पढ़ाना नहीं चाहता मैं, फ्लेक्स क्यों यूज करूँ, ठीक है। if I have to use the flex I will use it, but for now I will just say margin left, so this thing is entered aligned, flex बाद में करूँगा, this that is why I'm skipping that part।
एनीवेज, तो हम लोग का सब चीज बीच में आ गया, ठीक है, माय कंटेनर इज इन द मिडिल। इसके बाद अगर मुझको चाहिए, so I need another image, maybe one image of what? Let's find out. One image. Pixabay is a good source of image. Pixabay and Slash, those are good source of free images. You can grab any one or anything. Right? Let's grab some photos. क्या मिलता है हम लोग को फ्री में यहाँ पे? चलो ये ले लेते हैं. Okay. I do not want to download it. I need to copy image address. Not this, not this. Copy image link. काम करेगा इससे? Image link. Oh, let's start. साइड बाय साइड कर रहे हो ना? कहाँ पे है? बताइए ना अकेडमी. सेकंड में नाम दे देते हैं. So that's what I want. I want an image. I can say dot container. इसको हम बोलेंगे image container. Image container. img. कहाँ से हमको मिलेगा image? So I will say control space this.jpg because it is downloaded in my लोकल. ठीक है, तो यहाँ पे हमको इमेज मिल जाए. दिस इज द इमेज व्हाट आई हैव रिसेंटली डाउनलोड. देखो इतना बड़ा आ गया है, इतना बड़ा. इसका हम ठीक करेंगे, बट आई विल से ऑल्ट में. सो बी. अभी चलते हैं स्टाइलिंग की तरफ. सो व्हाट आई हैव इमेज कंटेनर. इमेज कंटेनर here. I will say width take 100% of the screen and height take 100% of the screen. ठीक है. इसके बाद उसके अंदर जो इमेज है डॉट इमेज कंटेनर, इसके अंदर जो इमेज है आई वांट डिस्प्ले. तो देख लेते हैं इमेज के अंदर हम लोग के पास क्या क्या है. स्पैन इनलाइन ये सब हो गया. फ्लेक्स वगैरह बाद में होगा. फॉन्ट का हम लोग का हो गया. ड्राइंग मार्जिन पैडिंग बॉर्डर यही हम कर रहे हैं. इमेज के लिए खास कुछ लिखा नहीं. ठीक है. styles and CSS. देखो क्या कर देती है, देखते हैं. This works, it works. I do not need this because we have only one image, so I can directly target to the tag, nothing else. Okay. So I'm giving it math height to 100%, not 100. I will give it to an 80% of the height. थोड़ा सा ऊपर एकदम इसके आ गया, सो इसको भी हम देंगे
कितना देंगे padding of 30 pixels like the above, and margin left what margin left will be 60 pixels. ठीक है, आ गया according to the top हमने इसको स्टाइल किया। एंड अच्छा, we have this beautiful property called border radius। border radius क्या करता है, साइड का जो कर्व है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, सो border radius you can give 5 pixels, थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। जितना ज्यादा दोगे 30 पिक्सल उतना राउंड हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ border radius। and also we have this border property, we are saying how much thick the border will be, maybe 2 pixel, 3 pixel, 5 pixel, whatever। if I do it 20, तो देखना इस इमेज का जो बॉर्डर है that will be much thicker। so this is for 2 pixel। since we have solid, except solid what we have dotted maybe, okay, double है और भी बहुत कुछ है, so you can use that। so this is dotted and then the color code जिस color का चाहिए। now what we else have, we have this transform, transition, transform, etc। इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, वो भी डालना पड़ेगा, otherwise that will not work। it is when we hover to the image, so these are some action sequences। so hovering, active, these are few actions that we can perform over some HTML DOM element that will react to this। so if you hover here, क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म दैट इमेज टू स्केल 1.05। तो इसको थोड़ा सा स्केल अप करो, मे बी आई एम गिविंग 2, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो एंड इसके लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल टेक अराउंड 0.3 सेकेंड। एंड उसके बाद बॉक्स शेडो वगैरह जो है, ठीक है। सो दिस इज 2x, 2 मींस 2x जो है उसका डबल हो जाएगा। सो दैट इज द ठीक हो गया। दिस इज वन पार्ट, सो यू कैन स्टाइल द इमेजेस आल्सो, अच्छे से बॉर्डर दो, स्केल वगैरह एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो। everything is available here। now what I will do, I can say dot container के अंदर जो h1 है, this one, ठीक है, तो एक आता है dot container, उसके अंदर एक h1, so I will style that one also। font family change कर दिया, font size large, larger, medium जो भी है, I will say 10% of the parent, 50% no VW, for VW। this VW is the view width, माने that means your डिस्प्ले का जो विथ है, व्यू हाइट, व्यू विथ, हाइट वगैरह जो है एंड विथ वगैरह जो है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। दैट इज आल्सो रिलेटिव टू द रिलेटिव यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू CSS। तो हम लोग का जितना भी विथ है, अगर मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा, मैं बड़ा कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो पैराग्राफ का जो है सेम ही है, बट जैसे ही मैंने इसको मैक्स स्क्रीन किया ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। अगर अगेन मैंने इसको छोटा कर दिया, देखो पैराग्राफ का तो अपना विथ ठीक ही है, बट ये छोटा होता है। इट इज रिलेटेड टू द width of the screen, that is called VW, view width property। next what I need to do is the color। so I say font color, तो color ही होता है, color violet बढ़िया लगेगा ना, ठीक है। and box shadow, latest setting I can give like 8 pixels, so हर एक लेटर के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। and then I can give like box shadow, देखते क्या क्या काम करेगा box shadow, size shadow,
पिक्सेल्स यहाँ पे नीचे कहीं पे है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ and I will apply the same style for this also. तो एक हेडिंग है, so this is the H1. इसके हिसाब से देखो बॉक्स बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, so it is treating it like a box. तो ऐसा नहीं करेंगे अभी के लिए, I will give it 0, देखते कैसा होता है. I give 1 pixel, गंदा ही लग रहा है. Okay, now it is doing something. 0.0305 कर दिया तो अच्छा, एंड इस 1 को भी मैंने अगर 0 कर दिया तो चलिए रन देता हूँ इसको. So thus you can also create an underline. ठीक है, तो तुमको सेग्रीगेट करना है तो यू कैन गिव अंडरलाइन. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, मैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अभी कुछ बनाया नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, हेडिंग और ये जो अपना नीचे का पैराग्राफ है एकदम कुछ स्पेस वगैरह कुछ नहीं. सो आई एम गिविंग लाइक margin bottom of 3 rem. Rem is also related to m. देखो अगर मैं यहाँ पे दूंगा और अभी के लिए 2 rem दे रहा हूँ, ठीक, और मे बी 5 पिक्सेल्स काम चल जाएगा, 15 पिक्सेल्स. ठीक है, काम ये तो चल रहा है. नेक्स्ट हम लोगों को क्या चाहिए, तो दिस इज मोटा मोटा हम लोगों को ऊपर का पार्ट खत्म है. एंड आई एम गिविंग पैराग्राफ ऑल्सो सम स्टाइल. तो द लॉरेम इप्सम पैराग्राफ जो है हम लोगों का, उसका भी मैं कलर चेंज करूंगा. कलर इज लाइक थोड़ा सा डार्क ही कुछ देना पड़ता है. चॉकलेट नहीं, बहुत ही घटिया लग रहा है. दिस ये थोड़ा सा ठीक है. इसका वेट चेंज कर देते हैं. सो फॉन्ट वेट और मे बी 20 पिक्सेल्स, 200 नहीं, 600. ओके, नाउ इट्स विजिबल. और क्या चाहिए हम लोगों को, we can give like font family, change it to Arial. ठीक है, लाइन हाइट, दोनों लाइन के बीच में थोड़ा सा हाइट बढ़ेगा. 40 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, 20 पिक्सल्स कम है, 22 पिक्सल. ठीक है, वह सब कुछ खत्म. आई कैन से अलाइन आइटम्स सेंटर. अच्छा, अभी के लिए ना जो हुआ है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, बट अभी भी हम लोग को एक चीज सीखना बाकी है, दैट इज व्हाट इज फ्लेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार रिकैप कर लेते हैं. वन इज दिस यूनिवर्सल सिलेक्टर. दिस इज द टेम्पलेट दैट वी नीड टू यूज इन एवरी CSS फाइल, जिससे कि हम लोग का काम बनेगा. ठीक है, these are optional, the background and color, these two properties are optional. बट उसके अलावा लाइक मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स, दैट इज आवर फिक्स्ड. एंड देन HTML एंड बॉडी में हम लोगों ने जो दिया है दैट इज द हाइट एंड विड्थ टू द 100%, that is also fixed properties. Next, what we have, the majority of the projects in the real world have this container. तो हर जगह पर होता है, कहीं पे कंटेनर होता है, कहीं पे मेन होता है, कहीं पे पेज होता है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ होता रहता है. ठीक है, तो हर जगह पे होता है, उसके ऊपर हम लोग अपना काम शुरू करते हैं. ऐसे नहीं कि हम लोग का जो कंटेंट है वो पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा का पूरा स्क्रीन में दिखेगा. द कंटेंट इज फिक्स्ड एंड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड इन दिस वे. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखे. विथ हो गया, बैकग्राउंड हो गया, मार्जिन पैडिंग दिस. ठीक है, अच्छा ये मार्जिन पैडिंग ये जो होता है, so everyone has this, एक के लिए दिखा रहा हूँ बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल. सो मार्जिन में देखो क्या क्या है, मार्जिन का टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है. ठीक है,
इनलाइन स्टार्ट एंड एटसेट्रा सब कुछ ही है, बट हम लोग को जानना है फर्स्ट फोर। सो वन इज मार्जिन, मार्जिन अगर अकेला होगा तो इट विल अप्लाई फ्रॉम ऑल द साइड्स, चारों तरफ से 10 पिक्सल करके वो मार्जिन दे देगा। अगर तुम किसी एक को स्पेसिफाई कर दो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, देन इट विल ओनली टेक 10 पिक्सल फ्रॉम द टॉप साइड, बॉटम से दोगे तो इट विल ओनली टेक द बॉटम साइड, ठीक है। सेम फॉर द पैडिंग एंड ऑल। अगर ऐसे लिख दोगे मे बी दिस इज ओके, सो मैंने इस पैडिंग को हटाया, आई एम गिविंग लाइक दिस पैडिंग 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल। इसका मतलब भी ऊपर की वाले की तरह ही, दैट मीन्स व्हाट, पहला वाला जो होता है इट इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन, सो फर्स्ट इज टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, ओके। So this is how you can give it. Suppose तुमको बस 3 जगह से देना है, किसी एक जगह पे देना नहीं है, so you can replace it like this. So इसको 0 कर दो, जहाँ का भी नहीं देना है, मे बी टॉप में हमको यहाँ पे पैडिंग देना ही नहीं है, so I will give it a 0. देखो हेडिंग एकदम ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, नीचे की तरफ था, give it 30, क्या हुआ, पिक्सल देना होगा, yes. So again it is coming to this original state. उसके अगर राइट में नहीं देना है या बॉटम में नहीं देना है, in that case I can set those parts to the 0. 0 पिक्सल देने की जरूरत नहीं, you can give it, but that is not required actually. 0 अकेले से ही काम चल जाए। और क्या सीखा हमने यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली होता है, मतलब फॉन्ट के अंदर क्या क्या है, फॉन्ट का फैमिली है, साइज है, कलर है, लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट करके एक चीज है, देन वी हैव बॉर्डर बॉक्स टू गिव अ बॉर्डर। सो यहाँ पे एक्चुअली बॉक्स का पूरा बॉर्डर होता है, बट आई गिव only the bottom part, that is why it is showing as an underline part over here, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा फॉन्ट का वेट करके होता है, वेट क्या करते हैं, फॉन्ट को थोड़ा सा मोटा कर देता है, ठीक कर देता है, so this is the weight part. एंड उसके बाद इमेज का ये चीज है, इमेज का भी हाइट वगैरह वगैरह जो है सब हम लोगों ने देख लिया। इमेज में भी बहुत सारी की चीज होते हैं, मतलब इमेज रोटेट हो सकता है, सॉरी रिपीट हो सकता है, तो उसको रिपीट को नो रिपीट करना होता है, कंटेन करना होती है, कहीं कहीं फट जाता है, तो वो सब चीज़ें बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग एक दूसरे चीज में जाएंगे, दैट इज आवर टेक्स्ट बॉक्स। So this is our box model. Box model is done. Now it's time for the flex. So, flex क्या होता है, कैसे काम करते हैं उसे। So suppose I am taking a superstition scenario. Suppose I have 3 boxes. This is box 1. This is another box. ठीक है, this is another box. Okay, maybe हो सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, but there is one parent. So this is my container. I am saying ये मेरे पास एक parent है. This is my parent. तो हमको अगर इन बॉक्स को मतलब फॉर्मेट करना है, कहीं कहाँ पे रखना है, बीच में कितना स्पेस होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, ऊपर नीचे कितना स्पेस होगा, ये बॉक्स एक के बाद एक आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, या कॉलम वाइज आएंगे या रो वाइज आएंगे, दैट वी कैन हैंडल और वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट। उसके जो पेरेंट है उसको स्टाइल करने से हम लोग को बॉक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल मिलता है, ठीक है। सो क्या होता है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन वी हैव दिस डिस्प्ले प्रॉपर्टी, एंड इसका क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा, दैट इज वन इज ब्लॉक, अनदर वन इज इनलाइन। इंस्पेक्ट करके देखा था हमने। सो ब्लॉक ये अपना H1 के लिए था, P के लिए था, इनलाइन किसके लिए था, फॉर द स्पैन 1, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस यूजिंग इंस्पेक्टर टूल जो है, तो देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस पेरेंट, हम इस पेरेंट को देंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स। व्हेन वी गिव इट अ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ऑटोमेटिकली इनका जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऑटोमेटिकली रो वाइज अलाइन हो जाए, ठीक है। So, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर भी 4 चीजें होता है, ठीक है। वन इज फ्लेक्स डेकोरेशन, फ्लेक्स
decoration direction actually. Direction that is by default row, but you can change it to the column one. Okay. Next is what? Align item and justify content. Align item क्या करता है? This makes vertically position करता है items को, and justify content क्या करता है? That is positioning the horizontally part actually. So control Z. Horizontally position. ठीक है, horizontally position करता है. अभी देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है. तो एक्चुअली 4 चीजें हैं हम लोगों के पास. So we will और ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, but these are the 4 major properties that we will discover. These आ गया, हटाओ इसको. Okay. एक बार एमडीएन डॉक्स देख लेते हैं. that is टेक्स्ट के लिए क्या क्या है. फ्लेक्शन लेआउट, देखो हम लोग का हॉरिजॉन्टल टीपी है, वर्टिकल है, साइड और एक्सेट्रा. तो सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, आई हैव वन बॉक्स, उसके अंदर 3 डिव्स है. ठीक है, दिस CSS ओनली दिस HTML पार्ट ओनली इज सफिशिएंट. इमेज को अभी के लिए मैंने बंद किया. So if I now see what I have, कुछ, so basically कुछ नहीं, nothing is there. I will say this as class child box, similar to this also, class child box, and then third one also class child box. Done. अभी हम क्या करेंगे? I will give child box something, some height and width etc. So first thing box parent को हमने दे दिया, इसको अभी नाम चेंज कर लेते हैं, that is parent box. parent box है हम लोगों के पास. Giving the background color maybe gray. ठीक है, so this is my entire parent box. ऊपर से थोड़ा स्पेस देते हैं, so I will give margin top MARGIN TOP 20 pixels. ठीक है, एंड मुझे इसका हाइट भी चाहिए, so इसे हाइट ऑफ 20%. गुड एनफ आई थिंक. तो इतना काम हमको चलना है. अभी हम देंगे चाइल्ड बॉक्स को कुछ कुछ प्रॉपर्टी. देयर इज व्हाट हाइट 50 pixels and width of 6. स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत हुआ है हम लोगों का यार. अभी ठीक हो गया. बॉक्स तो फिर भी दिख नहीं रहा, क्या करें? बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 pixels सॉलिड. ठीक है, अब दिख गया हम लोगों को बॉक्स. ब्लैक नहीं, ऑरेंज से देखते हैं, वाइट पे पिंक दे देते हैं, कुछ सॉलिड दिखता है. ठीक है, अभी मिल गया. अभी हमको क्या करना है? बाय डिफॉल्ट ये मतलब हर एक जो चाइल्ड बॉक्स है ये क्यों नीचे नीचे आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन होगा. सो एवरी डिव इज एन ब्लॉक लेवल एलिमेंट. तो ये क्या करता है? इट टेक्स 100% ऑफ द विड्थ. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कम. तो मतलब 100% ऑफ द स्क्रीन विड्थ ले लेता है, पोजीशन पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करता है. हमने इसको जितना भी हाइट विड्थ दिया है विद बॉर्डर जो भी दिया है, बट स्टिल इट इज टेकिंग डिस्प्ले एज ब्लॉक. ठीक है, so one way could be display inline block. This is one way of doing this in horizontal.
और यू कैन गिव simply inline, सिंपली inline दोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। इट विल मीन टू टेक द ब्लॉक प्रॉपर्टी, तो इसका अंदर का जो हाइट वेट है वो भी कोलैप्स कर देगा, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक इज सिंगल वे। बट हमने अभी क्या पढ़ा, वी read just now that we can treat or position the child boxes in whatever way by simply applying few things to their parent. So this is our parent box or parent container. I can apply what? I can apply display. So by giving display flex, by default, flex direction is row wise. That is why it is taking in a row. What else we have? We have row reverse also. So it will be like 3, 2, 1 in the backward way. और क्या क्या है हम लोगों के पास? We have flex, maybe this row हो गया, row reverse हो गया, column है, column reverse, ठीक है। So what we most use, we will use mostly column or row। अब क्या कर सकते हैं, देखो एकदम ही शुरू में है, so I can give like justify content center। क्या हुआ, justify content is centering all the child elements। किस तरीके से कर रहा है, it is doing it in the horizontal manner, ठीक है। so it is doing horizontal centering। तो ये vertically करना है तो क्या करना होगा, align items, so align items center, so it is aligning the items in the vertical। जो उसके बीच में थोड़ा सा जगह चाहिए, I can either give gap of maybe 20 pixels, so it will provide me 20 pixel gap in between the elements, or I can give in the justify content, I can give like space around between evenly, everything is possible। I'm first giving it a around, so space around मतलब चारों तरफ से equal space होगा। so here some space, then here also some space, बीच में से cut है, ठीक है। so this portion is for this single box, then बीच का इसकी तरफ भी इसका थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, तो लाइक दिस ये तीनों का स्पेस अलग अलग है, ठीक है। then space around, space between, space evenly, everything, space evenly gives equal space in between every element, ऐसे भी हो सकता है। अब मैं अगर इसका हाइट एंड विड्थ हटा दूँ, so we like this, ऐसे नहीं चाहिए मुझको, एंड 500 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो गया, 300 पिक्सल्स और भी ज़्यादा हो गया, 200 थोड़ा सा ज़्यादा है, 120 सिमिलर टू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो। So suppose we have few boxes or few components in our page जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, so we can give it like this, ठीक। अच्छा, एक और चीज क्या है यहाँ पे करने के लिए, if I inspect this window and if I scroll it, थोड़ा सा और छोटा करूँ, 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 देखो ये मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली व्हेन आई एम वेरी मच स्क्वीज्ड आउट, यहाँ पे मेरे पास एकदम जीरो गैप, कुछ गैप नहीं है, व्हेन आई एम स्क्वीज्ड आउट मुझको क्या करना है, आई वांट दिस थर्ड एलिमेंट टू कम टू द नेक्स्ट लाइन, पीछे तो जगह है वहाँ पे तो शिफ्ट हो सकता है, वेयर इट इज नॉट डूइंग इट ना, ये और भी स्क्वीज होता चला जा रहा है। सो इसको करने के लिए क्या है हम लोगों के पास, वी हैव अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, अदरवाइज ये करने में जान निकल जाता, सो वी हैव जस्ट अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट इज फ्लेक्स रैप। अगर तुमको रैप करना है यू से नो रैप, और नहीं करना है तो नो रैप, अगर रैप करना है तो रैप। so if I now give display wrap, now if I inspect this window and if I now squeeze it down, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, now एकदम edge to edge आ गया है, और कड़ा कर देखो नीचे आ गया, ठीक है। एकदम edge to edge है, बिल्कुल गैप नहीं है तो नीचे आ जाएगा, so it will automatically adjust based on the height।
और क्या कर सकते हैं, आई कैन genuinely increase the things here. यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, आई कैन गिव अ फोर्थ वन here. ठीक है, 4 भी सेट हो गया. एज पर द width अगर मैं 5 एक दूंगा वो भी सेट हो गया, फिर भी जगह थोड़ा सा, तो अभी अगर दुआ किया होगा तो ये सेट नहीं. ठीक है, सो एज पर द रेशियो ऑफ द स्क्रीन अभी के लिए जो है मेरा मिनिमाइज किया हुआ स्क्रीन में 5 तक का सेट हो सकता है, 5 तक का जगह वहाँ पे है, बट 6th एलिमेंट अगर आया तो इट विल ऑटोमेटिकली बी डाउनवर्ड्स. ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अगर मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह भी खोल के देखें तो वहाँ पे क्या है, वी हैव मल्टीपल थिंग्स हियर, है ना. केपीआई से आ रहा है, कुछ इमेज आ रहा है, कुछ टेक्स्ट आ रहा है, कुछ उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ कुछ आ रहा है, तो वो तुम्हारे स्क्रीन के हिसाब से, अगर तुम बड़े स्क्रीन में खोलोगे तो 4 दिखेगा एक रो में, और थोड़ा सा टैबलेट वगैरह स्क्रीन में खोलोगे तो तुमको दो दो करके पेयर में दिखेगा. मोबाइल पे खोलोगे तो कितना दिखेगा, एक करके. इफ यू स्क्रॉल अप यू विल सी आइटम बाय आइटम. ठीक है, तो वो भी ऐसे होता है. तो दे हैव यूज्ड फ्लेक्स प्रॉपर्टीज एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज, उस हिसाब से वो स्क्रीन के हिसाब से आता जाता है. ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्लेक्स बॉक्स. ठीक है, अच्छा एक और चीज है हम लोगों का जो कि थियोरेटिकली समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल से, दैट इज आवर पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन. ठीक है, क्या क्या पोजीशन है हम लोग का, वन इज मतलब मेजर जो है, वन इज इनहेरिट, नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव. तो गड़बड़ हो रहा है मेरे टीम के साथ, क्यों हो रहा है. ठीक है, तो मोटा मोटा ये सब है. अच्छा, एब्सोल्यूट में क्या आता है, सपोज सपोज दिस इज माय कंटेनर और आई हैव 3 बॉक्सेस लाइक दिस, एक ऊपर नीचे करके 3 बॉक्सेस. इफ आई मेक अ सिंगल एलिमेंट, तो पहले तो जान लेते हैं पोजीशन का मतलब क्या है, व्हाई वी यूज पोजीशन. पोजीशन यूज करते हैं इसीलिए कि हम अपने डॉम में और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पोजीशन कर सके. फॉर एग्जांपल इफ यू सी एनी नाउअडेज वेबसाइट, तो वहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक छोटा सा गोला होता है. ठीक है, गोला होता है, इसको बोलते हैं चैटबॉट. ठीक है, जो कि हमेशा यहाँ पे ही रहता है. इफ यू स्क्रॉल अप द स्क्रीन कुछ नहीं होगा, स्क्रॉल डाउन करो कुछ नहीं होगा, हमेशा यहाँ पे बैठा रहेगा कॉर्नर पे, तुम्हारा पूरा कंटेंट ऊपर नीचे हो जाएगा बट वो वहाँ से नहीं मिलेगा. तो क्या किया हुआ है, तो उस चैटबॉट तो कुछ नहीं होगा, एक डिव है छोटा सा, एक राउंड शेप का डिव है वहाँ पे बना हुआ, तो उसको क्या किया गया है, उसको वहाँ पे जाके पोजीशन कर दिया गया है. मे भी पोजीशन रिलेटिव किया, एब्सोल्यूट किया, कुछ भी किया, हम लोगों नहीं पता क्या किया हुआ है, तो उसको वहाँ पे जाके फिक्स्ड कर दिया गया है. ठीक है, तो विद दैट थिंग क्या होता है, whenever we scroll up or down that something will be always sticky in the window. और क्या होता है, और हम लोगों को देखे हैं कि जितना भी स्क्रॉल करो ऊपर का जो नया बार सेक्शन, सपोज दिस इज माय नया बार, सो जो नया बार सेक्शन है वो कहीं पे नहीं हिलता, जितना तुम ऊपर स्क्रॉल करते जाओ नया बार वहीं पे टिका हुआ रहेगा ऑलवेज. So that is how that is why position is important to the CSS. ठीक है, ऐसे ऐसे अप्लाई होता है, दिस इज द एब्सोल्यूट थिंग. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू दिस. So I am saying absolute and relative. इसके अलावा भी और चीजें हैं बट these are the things. Absolute में क्या क्या होता है, when we make
एनी आइटम और कंटेंट, आइटम लिख देता हूँ अभी के लिए, एब्सोल्यूट, it comes to the very top of box, और इस बॉक्स को एक और तरीके भी लिख सकता हूँ, दैट इज अ स्क्रीन। तो सपोज दिस इज माय स्क्रीन, फ्लैट करके दिया हुआ, फ्लैट एंड स्क्रीन, ठीक है। सपोज तुम साइड से देख रहे हो, तो इसमें तुमको 3 बॉक्स मिलेगा, ये एक बॉक्स है, और ये एक आइटम लिखा हुआ है, उसके नीचे एक दूसरा आइटम लिखा हुआ है, उसके नीचे तीसरा आइटम लिखा हुआ है। सो व्हेन एवर आई मेक दिस आइटम पोजीशन एब्सोल्यूट, ये क्या होगा, एकदम ऊपर 3D में सोचोगे तो एकदम ऊपर जाके दिखने लगेगा, ठीक है। और बीच का वाला करोगे तो बीच का वाला ऐसे ऊपर जाके 3D में दिखने लगेगा, और नीचे वाला जितना भी नीचे का है वो खिसक के ऊपर आ जाएगा। So if I have this kind of box here, a direction, suppose one heading is there, so this is one heading, नीचे नीचे लिखा हुआ एक पेज में, ठीक है। दिस इज heading 2, this is for heading 3। अगर मैं ये हेडिंग वाले को पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट के, एब्सोल्यूट बना दूंगा, तो क्या दिखेगा, यू विल सी हेडिंग ऊपर वाला ऊपर ही फिक्स्ड है, हेडिंग 2 ऊपर उठ के आ जाएगा, सो इट विल कम टुवर्ड्स अस, 3D में आएगा, ठीक है। सो हेडिंग 2 दिस इज एलिवेटेड, ठीक है, बहुत ऊपर है। और हेडिंग 3 क्या होगा, वो इसके नीचे जाके छुप जाएगा, ये जो हेडिंग का जो बॉक्स है और उसका जो भी एरिया है उसके नीचे जाके हेडिंग 3 छुप जाएगा। अगर हेडिंग 3 थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शायद सही से दिख सकता है, बट इट विल बी हिडन इन beneath the heading। दिस इज हाउ एब्सोल्यूट वर्क। एब्सोल्यूट क्या करता है, वो अपना पोजीशन ही छोड़ देता है, पोजीशन छोड़ के ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कुछ ऊपर उठ के आ गया, सपोज दिस इज फ्लोटिंग इन द एयर, तो क्या करोगे, तुम इसको धक्का देके इधर उधर हिला सकते हो। So that is how we can position things in CSS by using this position property। So position absolute, position relative हो गया, and then we have position sticky, etc। ठीक है। Relative में क्या होता है, relative का भी देख लेते हैं। When we make anything relative, it come out of the relative में होता है, तो क्या होता है, it is movable inside boundary। तो उसका वो अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। सपोज यू आर गिविंग heading 1, heading 2 and heading 3, तो अगेन प्रीवियस की तरह इसको तुमने रिलेटिव बना दिया, ठीक है। और इसको तुम उठा के बोले कि अच्छा ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा मे बी 5 पिक्सल 20 पिक्सल जो भी है राइट में शिफ्ट हो जाए, तो इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, द आउटपुट विल बी लाइक दिस। सो सपोज दिस इज माय स्क्रीन, यहाँ पे तुम्हारा है H1, यहाँ पे पहले था, आई एम गिविंग इट लाइक दिस, यहाँ पे पहले H2 था, उसके नीचे H3 है। अभी इसको बोला है कि तुम 20 पिक्सल राइट में शिफ्ट हो जाओ, सो अभी जो H2 दिखेगा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अगर 50 पिक्सल वो 100 पिक्सल राइट में बोलेगा तो क्या पे आएगा, यहाँ पे H2 यहाँ पे। बट दिस प्लेस, इसका जो प्रीवियस प्लेस था उसका रेफरेंस अभी तक इसमें छोड़ा है, दैट इज वाई H3 लपक के इसके अंदर नहीं आ सकता, जो कि एब्सोल्यूट के केस में हो रहा था। So H3 was taking H2's place, but now H2's place is always reserved, it will not left vacant, तो उसका प्लेस वहाँ पे है, बट इट इज फ्लोटिंग इन द स्क्रीन, और कहीं पे भी हम उसको पोजीशन कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। So now again get back to the code। अच्छा, तो इमेज वगैरह पेरेंट चाइल्ड बॉक्स जो भी हुआ, अभी के लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। सो आई हैव दिस 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, इतना बॉक्स मुझको नहीं चाहिए, 3 स्किप कर 2 3।
साइड बॉक्स आई एम गिविंग इट समथिंग लाइक कुछ हाइट विड्थ वगैरह दे देते हैं एंड बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमको समझ में आए कहाँ पे क्या है। सो दीज आर द बॉक्सेस व्हाट आई वांट। एक और तरीका है सिलेक्ट करने के लिए NX cell you can give like this NX cell 2 I can give some values to the second child only or second element only, so I can give like PG salmon like this. The third one, 1 2 3, so the third one is like dot child box, then again NX child, now I give it 3. फिर कैसे हमको background nothing else ये से चलो एंड जो पहला वाला है उसका हम फुल ही देंगे ठीक है। अभी क्या करेंगे हम इसको पोजीशन वेरी और आई कैन गिव इट पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लिखिएगा तो क्या होगा देखते हैं मजा आएगा। अगेन क्या है देखो एब्सोल्यूट दिया तो मैं अगर नंबर 2 को एब्सोल्यूट दूंगा तो 2 ऊपर उठ के आ जाएगा, मतलब 2 वर्ड्स इफ यू इमेजिन द स्क्रीन इज अ 3D मैनर तो 2 ऊपर उठ के आ जाएगा एंड 3 विल टेक इट्स प्लेस, सो आई कैन गिव एब्सोल्यूट। सो 3 गया नहीं है, उड़ के नहीं गया, 2 के पीछे ही है। इफ आई गिव 3 a little bit height, I give a height of maybe 600 pixels, यहाँ पे क्या था 120 था ना, I'll give 150 pixels। देखो 50 ये जो 3 वाला पार्ट है ये नीचे चला गया, 2 ऊपर है एंड आई कैन नाउ इट इज इन द 3D वेक्टर है, तो ये हवा में कहीं पे उड़ रहा है, तो आई कैन पोजीशन इट एज पर माई प्रायोरिटी टू द स्क्रीन, कहीं पे भी स्क्रीन पे। आई कैन गिव लाइक टॉप से मैं दूंगा 80%, तो ऊपर से 80% जगह ले लेगा, थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो मुझको राइट में देना है, ऐसे राइट से तुम जाओ 10% आ गया, टॉप से 80% दो, ये बॉटम से तुम दो 20%, दोनों एक ही है, ठीक है। सो बॉटम में दिया 20%, टॉप वाला अभी बंद कर दो, 20 ज्यादा हो गया और भी ज्यादा हो गया 5%, ठीक है। राइट में कुछ 5 दे दो, 5% दे दो। So this is how we can take the thing or take any item to the screen level। तो एब्सोल्यूट में क्या हुआ, एब्सोल्यूट में एकदम ही ऊपर उठ के चला गया सबके ऊपर, ठीक है। तो अगर so this is the third box actually I gave it 150 pixel, that is why it is taking this much, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ 120। अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट से रिलेटिव कर दूँ तो क्या होगा, क्या हुआ फिर, तो हम लोग का अगर रिलेटिव कर देंगे तो ये अपने पोजीशन से बाहर नहीं जा पाएगा। सो एवरी टाइम व्हेन वी वांट टू मूव आइटम एन आइटम, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसका पोजीशन एब्सोल्यूट ही रखते हैं। देखो इसमें एक छोटा सा चीज समझने वाली है, क्या है वो, ये इसका मतलब ये बनता है कि इफ आई एम गिविंग एब्सोल्यूट टू एनी आइटम, वो बाय डिफॉल्ट अपने स्क्रीन के कहीं पे जगह पे भी जा सकता है। सो इट इज टेकिंग रेफरेंस टू द बॉडी, रेफरेंस टू बॉडी, बॉडी के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। बॉडी क्या है, बॉडी बॉडी तो अपना स्क्रीन ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लेके पूरा का पूरा अपना स्क्रीन ही है, तो बॉडी के हिसाब से एब्सोल्यूट दोगे तो कोई भी आइटम कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट आई डू नॉट वांट
आई वॉन्ट, सपोज मेरे पास एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, दिस इज माई स्ट्रक्चर, दिस इज माई एंटायर विंडो, मेरा लैपटॉप का पूरा स्क्रीन है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ऐसा छोटा सा बॉक्स। तो आई हैव सम आइटम एट द फर्स्ट पोजीशन, बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखोगे, जो भी लिखोगे यहीं पे आएगा। तो मुझको ये आइटम यहाँ पे मूव करना है, बॉक्स के एंड पे, पूरा स्क्रीन के हिसाब से नहीं करना होगा, मुझे चाहिए कि बॉक्स से बाहर ना निकले, स्क्रीन बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, बॉक्स से बाहर कभी ना निकले। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द पेरेंट रिलेटिव, ठीक है। अगर तुम पेरेंट को रिलेटिव बता दोगे एंड देन इफ यू से दिस इज द बॉक्स, इन दैट केस इसको तुम एब्सोल्यूट बोल के कहीं पे भी मतलब इस बॉक्स के अंदर, पेरेंट बॉक्स के अंदर तुम कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हो, इसके बाहर तुम इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन restrict the movement of an element after declaring it as relative or absolute, whatever. So in this example also we have a parent box जिसके अंदर हम लोगों के पास है रिलेटिव, यहाँ पे अभी के लिए तो बस चाइल्ड है, तो इसे डॉट पेरेंट parent, उस पर हमने हाइट दिया कुछ मे बी 50 फीट वेट, व्यू हाइट होता आधा स्क्रीन अपना, एंड द विड्थ विल बी 100 VW, 100% 100% रहता है। अभी अगर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो कैसा दिखेगा, आई वुड से सो दिस इज द बॉक्स एक्चुअली, ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सा निकल गया है, बट दिस इज माई बॉक्स ऑफ 50 VH एंड 100% ऑफ द विड्थ। अभी मैं इसको क्या करूंगा, आई विल से टेक पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो अभी इसका पोजीशन रिलेटिव हो गया एंड नाउ आई कैन मूव द थिंग्स पोजीशन। तो अगर मैं अभी इसको देखूंगा, देखो अभी ये बॉक्स के अंदर है, अभी बॉटम 5 मतलब बॉटम 5% का मतलब ये नहीं कि एकदम स्क्रीन के नीचे का 5% हो जाएगा, या राइट का मतलब ये नहीं कि एकदम स्क्रीन के राइट का, अभी वो बॉक्स के हिसाब से सेटल होगा। इफ आई गिव द बॉक्स लिटिल हाइट एंड विड्थ, मे बी मैंने इसको दिया 80%, गिविंग लाइक 80%, तो कहाँ पे गया, अभी समझने में और आसानी होगा। अच्छा, तभी बॉक्स के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा अंदर एडजस्ट हो, बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। सो इफ यू वांट एनी आइटम टू स्टे इनसाइड अ कंटेनर, तो तुम क्या करोगे, तुम कंटेनर को दोगे रिलेटिव, एंड अगर आइटम का पोजीशन चेंज करना है यूजिंग एब्सोल्यूट और समथिंग, तो तुम आइटम का एब्सोल्यूट दोगे, एंड वी हैव दिस सिंपल प्रॉपर्टी लाइक टॉप है, बॉटम है, राइट है, लाइक दैट वी हैव लेफ्ट आल्सो, ठीक है, उसके हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव टुडे। पहला पार्ट कंप्लीट है, टाइप्स ऑफ ये कंप्लीट है, सिलेक्टर्स कंप्लीट हो गया, ब्लॉक इनलाइन लेवल एलिमेंट डन, और क्या क्या है, फ्लेक्स बॉक्स डन, फॉन्ट का ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इज डन, बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये तीनों डन, और क्या है, कंटेनर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स भी हो गया, पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, those are done। अच्छा, इसके अलावा भी दो तीन चीज और है, दैट इज फिक्स्ड एंड स्टिकी। फिक्स मतलब स्क्रीन के हिसाब से फिक्स्ड रहेगा, कहीं पे हिलेगा नहीं। लेट मी डू इट, यहाँ पे ये आई एम अनकमेंटिंग दिस,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अभी इसको पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करके पोजीशन स्टिकी करते हैं, ठीक है। एंड इसके पैरेंट का भी हटा देते हैं। So in that case, what will be the thing? Position sticky is top. एक छोटा मोटा एग्जांपल होगा। Is it moving actually? Yes, it is moving. So what I will do is, let's save it. अच्छा, देखो फिक्स का क्या होगा, sticky तो नहीं हुआ तो फिक्स का ही देख लेते हैं। फिक्स में क्या होता है कि if I make any item to be fixed, तो वो कहाँ पे जाता है, वो एकदम कॉर्नर पे जाकर फिक्स होगा। तो ये फिक्स पैरेंट के ऊपर होता है। My this parent box is relative to that, but it is coming outside of it. So I will say top से इतना ज़्यादा नहीं है। I will say top से 50%, 50% and left also 50%. In that case, it will be fixed at the very center. And if we scroll the screen, जितना भी हो रहा है screen, but the item is not moving because it is fixed to that position. Similar for the sticky also, but sticky में क्या होता है, उसका एक डिजायर्ड पोजीशन, दैट इज द रिलेटिव पोजीशन, उसके ऊपर वो नहीं उठ सकता जितना भी सुनना। दैट फॉर दैट वी नीड मल्टीपल स्क्रोलिंग और मल्टीपल पेजेस ऑफ स्क्रोलिंग, बट इट इज देयर। सो हो गया, ऑलमोस्ट स्टिकी भी डन है, फ्लेक्स बॉक्स वी हैव ऑलरेडी डन। तो डिस्प्ले फ्लेक हो गया, फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई अलाइन आइटम, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, गैप हो गया, फ्लेक्स ट्रैप, ये भी हम लोगों ने कर दिया था, ठीक है। सो ओके, मोस्टली डन। आज का जो भी एजेंडा था, जो भी टॉपिक्स कवर्ड होने वाला था, दैट इज डन। अभी बोलो क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह है, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई।